Standard 8 students, my name is Yash Piyani. I'm a graduate at Kanpur. I've done my BTech in petroleum engineering and been teaching physics from last 10 years. Today, I'll be dealing with the new pattern of ICSE, which it has just adopted. As you might know, physics has now declaratively become one of the most challenging subjects in your ICSE curriculum. So, the change in physics since 2022 has been before 2020, it was more like a textual oriented based questions. They might ask some tricky questions, but again, in the textual fashion. Now, there came a paper of 2023, which actually took the guts out of the students. The paper was all in its capacity a very good competency based questions. So, the questions in those papers demanded your thinking skill and your application skill. In my teaching career, I have thoroughly noticed that developing these skills in just a year is not fair for the kids. They need to have some more time. When a good question is asked, the approach of that questions is not just about having that chapter in your guts. It's more than that. It's about having a basic knowledge of approaching any question, any concept. So here comes the role of physics. And why not start from it? As easy as this chapter may sound, that's called matter, I have some really good competency-based questions in matter, which I'd like to share it with you. So this is going to be a short little 10 minutes video in which I'll be describing what matter is. So matter you study in physics and matter you also study in chemistry. The basic difference the matter of physics and chemistry is chemistry में आप matter पढ़ते हो molecular level पे. No doubt same content आप physics में भी पढ़ोगे, but the angle of understanding the matter chapter in physics is on the basis of energy transaction. Well, you'll be studying how the molecules are behaving in chemistry. You'll be studying how molecules are transitioning the energy between them from one state to another, from this state to that state, and so on and so forth. We have several new terms to acquire in this chapter, like boiling, condensation, melting, fusion, freezing. Then we have evaporation, we have sublimation, we have deposition. So these are some of the terms that you have to really understand. Now, this chapter majorly will be dealing with is the chapter declaratively first states what matter is. For physics, matter is nothing but a mass. So the actual definition is something that occupies space, has mass, and can be felt by our senses. That's called matter, the world we live in. Anything you can touch, hold, see, feel, that's called matter. Love is not a matter, it's an emotion. Yeah, you cannot, it does not have a volume, it does not have mass. When someone says, Kya bhari bhari pyar karta hai bhai, that does not mean that the literal heavyweight love you are doing. So love is not matter. But on the other hand, air is matter. Air has mass. When filled in the balloon, it occupies space. So air is matter. It can be felt at Lonavala. Yeah, the good air, the breezes. So this is what matter is. But in context of physics, this chapter, the matter is basically just mass. Moving forward, a matter has molecules within it. Several different chota molecules which comprises to become matter. Ultimately, there was this guy called Dalton. He went nuts someday. He had this philosophy without a proof. He started going home to home and declaring that अरे अरे तेरे को पता है सब कुछ ना छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है and that particle is known as atom. And everyone asked him, है छोटा छोटा पार्टिकल से बना है हर चीज दुनिया में बता बता पार्टिकल दिखता कैसे. डाल्टन से डरे रे पार्टिकल दिखता तो नहीं है प्रॉब्लम है. देन दुनिया से डरे तू क्या चीज दिखती नहीं है उसके बारे में बता रहे ऐसा कैसा चलेगा रे कुछ प्रूफ दे. सो प्रूफ के लिए डाल्टन ने क्या किया एक बाल्टी लिया बाल्टी में पानी भरा क्लीन वाटर और उसमें डाला एक चुटकी सिंदूर तो वाटर हो गया लाल कलर का. इधर से पानी निकाल के अरे क्लीन वाटर था इधर से एक मग पानी निकाला छोटा सा पोर्शन और इस क्लीन वाटर में डाल दिया. इस क्लीन वाटर में भी लाल कलर आया. वो करना क्या चाह रहा था कि इतने बड़े लाल कलर के पानी में से अगर छोटा सा भी मैंने लाल कलर का पानी निकाल के इसमें डालूंगा तो वो एक चुटकी सिंदूर में सोचो कितने सारे पार्टिकल्स होंगे उस रेड डाई के. दैट अगेन दिस वन इज आल्सो कन्वर्टिंग. और ये ऐसा करता गया ये बताने के लिए कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स थे उस एक चुटकी सिंदूर में तभी सबके पास में पार्टिकल्स आते जा रहे हैं.
So this experiment showed that atom is made up of indefinite small particles. Matter is made up of indefinite small particles. Then he explained the three states of matter, which is solid, liquid, and gas. What he explained was that any three state can be classified on basis of these characteristics of the molecules. First is their intermolecular space, intermolecular force of attraction, and their energy level, the kinetic energy inside them. Yeah. So solids have minimum intermolecular space since they have maximum force of attraction between the molecules. So the more the molecule is attracting each other, they'll come closer to each other. The more closer the particles are, the more compactness, toughness, rigidness we get into the matter, right? Hence, solids are rigid. They are, you know, energy of the particles, since they have very less space to move along the molecules, as they are very compact, they have very less kinetic energy within them. गैसेस की बात करूंगा तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस इज हाईएस्ट. सम ऑफ द टाइम्स at let's say very low temperature we can assume that the gases have some intermolecular force of attraction, but एकदम हाइट कर दो गैस का भी टेम्परेचर एकदम ज्यादा कर दोगे ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो मानता है. ऐसा है, तुम आगे जाके पढ़ोगे ये. So gases have maximum intermolecular space. Intermolecular force of attraction उस केस में it will be minimum and the kinetic energy will be maximum. ठीक है. इसीलिए गैस के पास में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कोई बंदिश नहीं डाल रहा है, तो गैस के पास में सर्टेन टेंडेंसीज है, लाइक इट ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अवेलेबल इन द रूम. दे हैव डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स कैन गो अहेड एंड अहेड. है ना, डिफ्यूजन सो इम्पोर्टेंट, जिसके वजह से आधी दुनिया फूडी बनी है. यू क्रॉस अ चाइनीज पार्लर, द चाइनीज गाय यूजुअली हैज दिस बिग वॉक कढ़ाई एंड इट्स ट्राइंग टू कुक अ फूड, एंड उसकी स्मेल दूर चाइनीज कॉर्नर से भी आपकी नाक में जाएगी. है ना, डिफ्यूज होके आइए वहां से वहां तक. पहले नाक में जाएगी, फिर पेट में जाएगी, फिर आप चाइनीज कॉर्नर जाओगे. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज गैस. Liquid is somewhere in between solid and gas. And so while solid has a fixed volume, even liquid has a fixed volume. But gases don't have a fixed volume. But even though solids has fixed volume, it has a fixed shape also. सॉलिड का शेप फिक्स होगा, बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है भाई. 1 लीटर का पानी का बॉटल जैसा बनाना चाहो बना लो, मोटा बना लो, पतला बना लो, लंबा बना लो. अगर 1 लीटर का है तो उसमें 1 लीटर लिक्विड आएगा ही आएगा. गैस का ऐसा कुछ भी नहीं है. गैस की वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है. अगर एक 1 लीटर के बॉटल, बंद बॉटल के अंदर गैस है, तो 1 लीटर की वॉल्यूम है. ढक्कन खोलते गैस की वॉल्यूम पूरी दुनिया जितनी हो जाएगी. या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो समवेयर बिटवीन. इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल फैलते हैं लेकिन अपनी हद में रह के. है ना, लिक्विड फैलेगा लेकिन सब एक साथ रहेगा, एक डेफिनेट एरिया तक ही फैल पाएगा. सॉलिड फैलता नहीं है ना. गैसेस का तो कोई पता है आपको, डिफ्यूजन हो जाता है. इसकी काइनेटिक एनर्जी भी समवेयर इन बिटवीन होती है. अगर मैं इन प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाऊं, ठीक है, मेन प्रॉपर्टी में चेंजेस लाऊं, तो फेजेस एक दूसरे में आपस में बदल जाएंगे. सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगा, गैस लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा. समटाइम्स सॉलिड गैस में बदलेगा और गैस भी सॉलिड में बदलेगा. इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं. टोटल 6 चेंजेस है जिसके बारे में हमको पढ़ना है बॉस. ठीक है, चेंजेस कैसे लाते हैं? ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी, ये सारे चेंजेस में से जो मोस्ट कॉमन चेंज हम लोग लेके आ सकते हैं इज बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड चेंजिंग दिस. बिकॉज ऑन चेंजिंग दिस विल चेंज एंड दिस विल चेंज एज वेल. हाउ डू वी चेंज दिस? सपोज दीज आर टू मॉलिक्यूल्स विच हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. है ना, अब मैं अगर इनमें एनर्जी डालूंगा, एनर्जी इन द फॉर्मेट ऑफ हीट, है ना, अगर बहुत हीट जितनी एनर्जी मेरे साउंड में भी कैपेसिटी है, मैं ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो हीट के जितनी एनर्जी डेवलप कर सकती है, तो साउंड एनर्जी से भी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग हो सकता है, चेंज ऑफ फेज हो सकता है. एनर्जी का कोई परिभाषा नहीं है. किस फॉर्म में आप दे रहे हो वो एनर्जी का नाम बन जाता है. अगर आप एनर्जी को दे रहे हो हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी को हीट एनर्जी बुलाओगे. अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बुलाओगे. सो एनर्जी है, बस एनर्जी है. आपने एनर्जी दी तो उस एनर्जी से क्या होगा, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काउंटर करने वाला भी कोई आ गया, शेर का सवा शेर, तो अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा भागना चाहेंगे. है ना, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसको चेंज करोगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगी और जगह मिलेगी ना इनको भागने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी.
ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना चालू करते हो तो उसके साथ दो चीजें हो सकती है। एक तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और दूसरा उसका स्टेट चेंज हो सकता है ना। जैसे एक तवा है, ठंडा तवा है, गर्म तवा है। तवे को हीट किया तो उसने स्टेट चेंज नहीं किया, लेकिन उसने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया। तवे को बहुत हीट किया, बहुत 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 हीट किया, फर्नेस वगैरह लेके आ गया, तो तवा टेम्परेचर बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, एक पॉइंट के बाद में तवे का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब उस तवे में क्या हो रहा है, तवा मेल्ट होना चालू कर रहा है, अपना स्टेट चेंज करना चालू कर रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना किसी भी बॉडी का, तब उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और जब किसी का स्टेट चेंज होता है ना, तो क्योंकि स्टेट चेंज होने के टाइम पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, स्टेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज और नहीं हो पा रहा था, तो अब बची हुई हीट का क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो स्टेट चेंज होने के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी राइजेस। So kinetic and potential energy are like cousin brothers, they're from the same family, but कभी एक डोमिनेट करता है, कभी दूसरा डोमिनेट करता है, चाचा की जमीन, ताऊ जी की जमीन, वैसा। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करता है। जब स्टेट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करता है। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में बहुत प्यारा फिनोमिना है जिसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन इज बेसिकली सस्ता बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज व्हाट, बॉइलिंग इज चेंज ऑफ वाटर टू गैस, इतना हमको पता है। सी आई एम जस्ट रिकैप है, फटाफट भगा रहा हूँ मैं, बिकॉज आई वांट टू डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू सी द टॉपिक्स व्हिच वर देयर इन द टेक्स्ट बुक, बट somehow the teachers or the they didn't see or they didn't explain. I'm just trying to touch those topics, जैसे कि एनर्जी वाला पार्ट ये है चैप्टर में, बट जनरली so evaporation is like सस्ता boiling. Evaporation happens naturally. It can happen in any temperature. पर ईवी बॉडी इवेपोरेट करती रहती है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, कोई भी कंटेनर का लिक्विड है ना, उस लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस को धीरे धीरे वेपराइज करता है। तो अब ये सरफेस कम हुआ तो लिक्विड का नया सरफेस आ गया, उसको वेपराइज करेगा, फिर नया सरफेस आ गया, उसको वेपराइज करेगा। तो इट्स अ सरफेस फिनोमेना। वाइल अगर मैं किसी लिक्विड को बॉईल करूंगा तो गर्म करूंगा, उसमें वो पूरा लिक्विड गर्म होगा। सो इट्स ओवरऑल फिनोमेना। इवापोरेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इसी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। इसीलिए आप चाय कप से निकाल के प्लेट में डाल के, आप प्लेट में डालते हो तो सरफेस एरिया बढ़ा, तो इवापोरेशन होता है तो चाय ठंडी होती है। ठीक है। देन एयर पे डिपेंड करता है ना। क्या हो रहा है कि समझो अगर ये एक कंटेनर है, इसमें ये, तो क्या हो रहा है कि इधर से जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, इधर 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 इवेपोरेट होके गैस बन गया, इधर इधर है। ठीक है, ऐसा है। वाटर इवेपोरेट हो रहा है, गैस बन गया। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, समझो कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से कुछ पार्टिकल्स होंगे। लेट मी शो देम विद अनदर कलर। पहले से अगर पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर मॉइस्चर के, वाटर के पहले से ही पार्टिकल होंगे, और इवेपोरेट होके और भी पार्टिकल्स आए हैं, तो क्या होगा, इधर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना कि अब और पार्टिकल्स को आने के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जब एयर में बढ़ जाता है ना, तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में इवापोरेशन डिपेंड करता है ऑब्वियसली किस टाइप का मटेरियल है, इवेपोरेट होने के लिए तैयार भी है या नहीं है ना। कुछ लिक्विड्स है जो तुरंत इवेपोरेट होना चाहेंगे, जैसे केरोसिन, जैसे पेट्रोल, जैसे सैनिटाइजर। कुछ लिक्विड्स है जो बहुत टाइम लगे इवेपोरेट होने के लिए, जिसमें एक वाटर आ जाता है। थैंक गॉड ऐसा होता है, वरना पता चला समर वेकेशन में ही सारा पानी इवेपोरेट हो गया, है ना। तो ये इवेपोरेशन हो जाता है। अच्छा, एक चीज और समझो कि समझो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो कंटेनर है वो हीट ले रही है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से हीट कम हो रही है, ये बात आपको समझनी जरूरी है ना। तो अगर समझो मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो जो सॉलिड है वो हीट ले रहा है, तो एटमॉस्फेयर से हीट कम हो रही है। लेकिन समझो उल्टा हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, तो जो बॉडी है वो हीट छोड़ रही है ना, तो बॉडी की हीट कम हो रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो देखो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग है। अब इस पे क्वेश्चन खींचेगा वो, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा, व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज मेल्टिंग, वेरी नाइस सी बोर्ड। ICSE board have its perk of understanding, and it's all application based. So this is this the chapter. Then there is sublimation, there is deposition. कोई स्टेट अगर डायरेक्टली, मतलब होता है ना, जैसे रबर बैंड किसी ने खींच के रखा है,
रबर बैंड के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अब थोड़ा सा और खींचा ना तो एकदम टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम जीरो। तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन एकदम अपनी चरम सीमा पे है। थोड़ा भी हिट दिया ना तो तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो लिक्विड लिक्विड छोड़ो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको बॉइलिंग। चलो उसके बेसिस पर ना मेरे पास में कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाउ विल द वाटर लेवल ऑफ द हाउ विल द लेवल ऑफ द वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में ना पानी भरा हुआ है। ठीक है, वन सेकेंड। ये एक टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब में समझो ऐसा पानी भरा हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब के लिए बोल रहा है कि वाटर लेवल में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालूंगा तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, सॉल्ट उसमें जाके बस जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है पानी में। तो उसकी वजह से नो चेंज। ठीक है। अगर मैंने मड डाला तो मड तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जाके नहीं बैठेगा, खुद की जगह मांगेगा, जिसकी वजह से पानी का लेवल और बढ़ जाएगा, सो इट विल इंक्रीज, है ना। अमोनिया इज पास्ड इन वाटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अमोनिया इज अ सोल्यूबल गैस। सोल्यूबल गैस मतलब वापस से पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके बैठ जाएगा क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है ना पानी में, तो इसकी वजह से भी नो चेंज। Carbon monoxide is passed in test tube. Now you need this basic knowledge. Carbon monoxide does not dissolve in water, है ना। सो व्हेन इट इज नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, तो क्या होगा, वो एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, विच विल मेक द वाटर लेवल राइज, तो वाटर लेवल विल इंक्रीज। अल्कोहल इज एडेड इन टेस्ट ट्यूब। दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऐड हो रही है ना, लेवल तो बढ़ने वाला ही, इट विल इंक्रीज। ठीक है, ओके। इन द गिवन डायग्राम मार्क द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एज आस्क्ड। अब ये गिवन डायग्राम क्या बता रहा है कि कोई पाइप है, उस पाइप में से ना कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है और इस पाइप में ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसा बता रही है। तो बोलता है कि मार्क द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एज आस्क्ड। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स होगा, इट विल बी फोर्स ऑफ एडहेशन। यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ सरफेस, करेक्ट है ना बच्चों। दिस इज अ सरफेस, लाइक दिस, इट्स अ सरफेस। तो मतलब इस सरफेस पे इस पाइप के मॉलिक्यूल्स और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में, तो दिस इज फोर्स ऑफ कोहेशन, बराबर है ना। दो मॉलिक्यूल्स के, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन, ये हमने पढ़ा था। इसके बेसिस पर हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास में force of coordination question. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I marked it wrong. I'm so sorry. The force between two molecules is known as, I'm so sorry, the force between the two same molecules. Since it's inside the water ना, यहाँ पर वाटर के अंदर है ना, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स पूछ रहा है, इट इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेशन। सो सॉरी। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक पाइप का मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ एडहेशन। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, मूविंग अहेड। सो यू आर गिवन दिस टेबल, a substance A on heating increases its temperature as indicated below. Okay. So 1 मिनट पे 10 डिग्री था, फिर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन अब देखो आप यहाँ पर तो टेम्परेचर सेम हो गया, सेम है, सेम है, सेम है। फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। तब इसमें क्या देख के बोल सकते हो कि इतनी जगह पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था, क्योंकि टाइम के साथ साथ में मैं हीट तो डाल ही रहा था, 4 मिनट से लेकर 7 मिनट तक आई वॉज गिविंग हीट। अब वो हीट जा कर रही थी अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था तो,
हमने डिस्कस किया था ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो स्टेट चेंज होगा, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी मेल्टिंग पॉइंट, दिस कैन बी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद में वापस से देखो, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, मतलब अब स्टेट चेंज हो चुका है। देयर इज अ न्यू स्टेट ऑल टुगेदर, ओके। तो अब इस पे क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द मेल्टिंग बिगन, सो दे हैव डिक्लेयर्ड इट्स अ मेल्टिंग प्रोसेस, सो वी कैन से मेल्टिंग बिगन एट 4 minutes. What time the substance was only liquid? It was only liquid at 8 minutes. At eighth minute, it was only liquid. What is the state of matter at 6 minutes? 6 minutes pe it was some solid plus some liquid. लिक्विड और सॉलिड दोनों होगा ना, क्योंकि अभी भी प्रोसेस चालू है मेल्टिंग का, ठीक है। कंपेयर एक्स वाई एंड जेड, व्हाट इज एक्स वाई एंड जेड? सो आई कैन सी x is this, y is this, z is this, and they all are intermolecular space. सही है। तो इफ आई गो ऑन कंपेयरिंग एक्स वाई जेड, एक्स में सॉलिड था, y के टाइम पे लिक्विड बन चुका था, और z भी लिक्विड था, तो x का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, सॉलिड्स का कम होता है y से, लेकिन y और z का बराबर होगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इससे स्पेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा है, होता है। सच बताऊं तो स्पेस बढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपांशन, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं बढ़ता, ठीक है। कंपेयर पी एस टी, व्हाट इज पी एस टी? पी एस टी, व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ती जाएगी, बराबर है ना। सो काइनेटिक एनर्जी में टी इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द लिक्विड ए फ्रीज? फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वन एंड द सेम गाइस. So it will freeze at 21 degrees Celsius only. If it is converting from solid to liquid at this temperature, it will also convert from liquid to solid at this temperature. Good. Again, let's try some more questions. What will happen to the atmosphere temperature? We have discussed this, yeah? Condensation. What is condensation? Condensation में वेपर्स टू लिक्विड बन जाता है, बराबर। वेपर से लिक्विड बनता है। ऐसा करते टाइम पे क्या होगा? ठंडा होगा ना, वेपर से लिक्विड बनने के लिए ठंडा होगा, मतलब हीट छोड़ेगा, हीट लीव करेगा, और ये हीट कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। सो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस, इवापोरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस बन रहा है, ऐसा करते टाइम पे हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो एटमॉस्फेयर का हीट डिक्रीज होगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस, अगेन मेल्टिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड क्या करेगा? सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का हीट डिक्रीज होगा, ठीक है। These are very fine questions. Huh? Compare the rate of evaporation between A and B. Obviously, this is A and this is B, obviously. So between A and B, rate of evaporation compare करना है। यहाँ पर देखो फैक्टर्स में, क्या विंड है नहीं है, क्या मॉइस्चर है नहीं है, होता तो बताता। क्या सरफेस एरिया किसी का ज्यादा किसी का कम है? नहीं, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। लेकिन बी में मुझे दिख रहा है ना कि लिक्विड ज्यादा है, लेकिन क्या मैंने कभी भी ऐसे बोला कि इवेपोरेशन मास पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमिना है ना, अंदर लिक्विड कितना उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो इन दोनों का इवेपोरेशन सेम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एयर बह रही है ना, तो एयर की वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पिल्ड वाटर है, स्पिल्ड वाटर की वजह से क्या होगा? ये स्पिल्ड वाटर की वजह से सराउंडिंग में मॉइस्चर होगा ना, सराउंडिंग में मॉइस्चर होगा, तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। Cool. These are good questions. अगला, what does this experiment prove? Aha, the Dalton. This experiment shows that matter is made up of many small particles. In dump yard, the indisposable garbage is burnt in a room which had white painted ceiling, which converted to black after some time. White paint क्या होता है सीलिंग पे? डिस्पोजेबल इनडिस्पोजेबल गार्बेज बर्न करना चालू किया, तो क्या हो रहा है? उसमें से धुआं निकलता है, धुआं जाके ऊपर सेटल हो रहा होगा, है ना। So in the above, is the above process deposition? The answer is no.
इट्स नॉट यस, इट्स अ नो। बिकॉज वो जो धुआं बन रहा है ना, उस धुएं में ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में कुछ कार्बन था, विच वॉज नॉट गैस, विच वॉज वेरी लाइट सॉलिड। इट्स लाइक द कोयले का चूरा, एश। और वो जाके ऊपर सेटल हो चुका है, चिपक चुका है अभी। समझ रहे हो? सो द आंसर इज नो। Okay, then we have the recent technical aspect of ICSE assertion reason. आपको तो पता ही होगा assertion reason में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। ऑप्शंस ए होता है assertion is true and reason is true and reason explains assertion. दूसरा में assertion is true, reason is true, reason does not explain assertion. तीसरे में assertion is true, reason is false. चौथे में assertion is false and reason is true. ऐसा चार ऑप्शन। A container filled with water is left exposed to atmosphere. The water level in the container decreases after some time. True. The water in the container starts boiling. It starts evaporating. False. So option C. Energy is needed to convert solid to liquid. Yeah, that is what we have studied in the entire chapter. Energy is needed to convert solid to liquid. Change in, oh, sorry, this is phase. This is phase. Change in phase involves increasing intramolecular space by overcoming intramolecular force of attraction। बराबर बात है। कैसे करते हो ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? एनर्जी लेके। सो रीजन असर्शन को समझा भी रहा है कि एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट। ठीक है, so this is A. The amount of heat absorbed or rejected during the change in phase from solid to liquid or liquid to solid is same for any mass of substance। है? ऐसा होता है क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एब्जॉर्ब कब करेगा? जब सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, और लिक्विड से सॉलिड बदलने के टाइम पे रिलीज करेगा। तो बोलता है कि एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी सेम है। हाँ, लेकिन तब जब मास सेम है। जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उतना ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो। लेकिन अगर मास अलग अलग है, ऑब्वियसली एनर्जी अलग अलग लगेगी ना मेरे भाई। है ना? एक घर का एक छोटा सा बर्फ को मेल्ट करने में जितना एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए ना ग्लेशियर को मेल्ट करने के लिए। सो कॉमन सेंस यार। सो दिस इज फॉल्स। एंड बोलता है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ सब्सटेंस मतलब फिक्स्ड मास इज सेम। यस, ट्रू। सो दिस विल बी सी ऑप्शन, assertion is false। Okay, using pressure cooker for cooking is advisable at higher altitudes। Yes, the reason is that boiling point increases with increases in pressure। है ना? तो आपको क्या करना है ना, खाना बनाना है। आप नहीं चाहते कि जिस पानी में आप खाना बना रहे हो वो पानी बुड़ जाए। बॉईल होके वेपर बन जाए। तो फिर खाना कौन बने, किस में पकेगा? तो आप क्या करते हो ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए पहले तो ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये 100 पे बॉईल होने वाला वाटर 80 पे बॉईल हो रहा है अभी भाई। तो आप प्रेशर कुकर यूज करते हो आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120 चला जाए, अच्छे से खाना कुक हो जाए। दिस इज ए रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनेशन। Sorry, I extended the video by some time, but this was me for today। Thank you so much. My name is Yash Piani, checking out from Piani Super 30।